देखो ଶିଖରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଦେଶ ବିଦେଶର 30ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବେ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ନମ୍ବର 1 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାଗଣା ଟିକା। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାଗଣା ଟିକା। କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହି ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ମେ 1 ତାରିଖରେ ସାରା ଦେଶରେ 18 ବର୍ଷରୁ ବୟସ ବର୍ଗଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ ଟିକା ଦିଆଯିବ। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଟିକାକରଣ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆମ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଟିକା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବି ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଟିକା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କୋଭିଡ୍ ଟିକା ବାବଦରେ ରାଜକୋଷରୁ 2000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। 18ରୁ 44 ବର୍ଷ ବୟସ ବର୍ଗର 2 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକା ଦିଆଯିବ ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ସାରା ଦେଶ ଆଜି ଏକ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଏ ବର୍ଷର ସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାଂଘାତିକ। ତେଣୁ ପରିସ୍ଥିତିର ଭୟାବହତାକୁ ରାଜ୍ୟବାସୀ ବୁଝିବା ଦରକାର। ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମେ ନିଜେ ସତର୍କ ନ ହେବା ତାହେଲେ ସରକାର ଏକାକୀ ଏହି ମୁକାବିଲା ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ି ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ କୋଭିଡ୍ ନିୟମକୁ ମାନନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 2 ପିଏମ୍ କେୟାର ଫଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥାପନ ହେବ 551ଟି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଜେନେରେସନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ 551ଟି ପ୍ରେସର ସୁଇଂ ଆଡଜର୍ପସନ୍ ସ୍ଥାପନ ନିମନ୍ତେ ପିଏମ୍ କେୟାର ଫଣ୍ଡରୁ ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଥିବା କଥା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସବୁକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମିଳିବାରେ ସୁବିଧା କରାଇବ। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଜାରି କରିଥିବା ବିବୃତ୍ତିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଚିହ୍ନିତ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାମାନଙ୍କରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଜରିଆରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯୋଗାଡ଼ କରାଯିବ। ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥାକୁ 8ଟି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ଠିକା ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାପନ କଲା ପରେ ପଡ଼େଇ ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଆଜି ଅମ୍ଳଜାନ ଅଭାବରୁ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି ବୋଲି ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ ମୁଖପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 3 ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଶବଦାହ ଉପରେ କଟକଣା। ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ସଂକ୍ରମଣ ଭିତରେ ପୁରୀରୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଶବଦାହକୁ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ନେଲା ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। କୋଭିଡ୍ କାଳରେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଶବଦାହ ଉପରେ ଲଗାଯାଇଛି କଟକଣା। ବିଶେଷ କରି ପୁରୀ ବାହାର ଜିଲ୍ଲା ଓ ରାଜ୍ୟର ଶବ ଆସିଲେ କୋଭିଡ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ସହିତ ଜିଲ୍ଲା ବାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ମନା କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ଏପରି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ନମ୍ବର 4 ରାଜ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅଛି ଔଷଧ, ଟିକା, ଅମ୍ଳଜାନ ଶଯ୍ୟା। ରାଜ୍ୟରେ କୋଭିଡ୍ ସଂକଟ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଫାଭିପିରାଭିର ଔଷଧ ସାଙ୍ଗକୁ ରେମ୍ଡେସିଭିର ଟିକା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ରହିଛି ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ 6,69,603 ଫାଭିପିରାଭିର ଔଷଧ ରହିଛି। ଦୈନିକ 4,500ରୁ 5,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଔଷଧ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି। ଏହା ବାଦ 20 ଲକ୍ଷ ଔଷଧ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟରେ କୋଭିଡ୍ ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଥିବା ରେମ୍ଡେସିଭିର ଟିକା 39,737 ସିସି ରହିଛି। ଏବେ ଦିନକୁ 1000 ସିସି ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସରକାର ଆଉ 3 ଲକ୍ଷ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ତୁଳନାରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅମ୍ଳଜାନ ରହିଛି। ଏବେ 5ଟି କାରଖାନାରୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ 2ଟି ପୁରୁଣା କାରଖାନାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଅମ୍ଳଜାନ ଉତ୍ପାଦନକ୍ଷମ କରାଯିବ ବୋଲି ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ହେମନ୍ତ ଶର୍ମା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପାଣିପାଗ ସୂଚନା, ଆଜିଠାରୁ କାଳବୈଶାଖୀ ଓ ବଜ୍ରପାତ, ସତର୍କ କଲା ଆଇଏମ୍ଡି। ସୋମବାରଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ସହ ବଜ୍ରପାତ ଜାରି ରହିବ, ଏପରି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ବର୍ଷା ଓ କାଳବୈଶାଖୀ ସତ୍ତ୍ୱେ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଦିନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏଭଳି ପାଗରେ 2ରୁ 3 ଦିନ ଯାଏଁ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି। ବୁଲେଟିନ୍ରେ କୁହାଯାଇଛି, ସୋମବାର ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସହ କାଳବୈଶାଖୀ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ଆଇଏମ୍ଡି। ନମ୍ବର 6 ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଉ ସପ୍ତାହେ ବଢ଼ିଲା ଲକଡାଉନ୍, ମେ 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟକଣା। କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ ଅତି ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଉ ସପ୍ତାହେ ପାଇଁ ଲକଡାଉନ୍ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ଗତ ସପ୍ତାହଠାରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା କଟକଣା ସବୁ ମେ 3 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଭର୍ଚୁଆଲ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ କହିଲେ, ଭୂତାଣୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସର୍ବନାଶ କରିଚାଲିଛି। ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀରେ 6 ଦିନିଆ ଲକଡାଉନ୍ ଲାଗୁ କରିଥିଲୁ। ଉକ୍ତ ଲକଡାଉନ୍ ଆଗାମୀ ସୋମବାର ଭୋର 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଗଲା। ପଜିଟିଭର ହାର ହ୍ରାସ ପାଉଥିଲେ ବି ଦିଲ୍ଲୀରେ ମେଡିକାଲ ଅକ୍ସିଜେନର ଉତ୍କଟ ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଦୈନିକ କୋଭିଡ୍-19 ସଂକ୍ରମଣ ମାମଲା 20,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଥିବାବେଳେ ପଜିଟିଭ ହାର ମଧ୍ୟ 32% ଭଳି ରହୁଛି। ସଦ୍ୟତମ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ ହାର ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ନମ୍ବର 7
ऑक्सीजन जोगाणरे बाधा देले फांसी कहिले दिल्ली हाइकोर्ट। देशव्यापी कोविड संक्रमण उद्वेगजनक भाव व्यापी चलता बेले ऑक्सीजन संकट परिस्थिति को आहरी जटिल कर विशेषकर दिल्ली में यह अभावनीय परिस्थिति सृष्टि होईछि। ऑक्सीजन अभाव जो अनेक हस्पिटाल रे रोगी प्राण हरुथिबा बेले केतेक हस्पिटाल रोगी को अन्यत्र जीवा लगी कहउछंती। परिस्थिति एपरि होईछि जे दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल असहाय होई पड़िछंती। परिस्थिति गुरुतर हेउथिबा बेले दिल्ली हाइकोर्ट एही प्रसंग में कड़ा आभिमुख्य ग्रहण करिछंती। विभिन्न स्थान में ऑक्सीजन जोगाणरे केतेक व्यक्ति बाधा सृष्टि करुथिबारु हाइकोर्ट क्षोभ प्रकाश करने सहित एभली व्यक्ति को फांसी रे झुलई देबु बोली कहिछंती जे महामारी भितर लोकंक जीवन सह खेलुथिबा लोकंकु बर्दाश्त कराजिबो नाही। कोर्ट दिल्ली सरकार को कहिछंती ऑक्सीजन जोगाणरे किए बाधा उपजाउछि ताकु स्पष्ट करबाकू हेबो। दोषी चिन्हट हेले निस्तार पाइबे नाही। नंबर 8 टीका ऑर्डर देले राज्य सरकार। राज्यवासी को मागणारे मिलिबो कोविड टीका। मागणा टीकाकरण नहीं घोषणा करिबा परे दुई कंपनी को टीका ऑर्डर देइछंती राज्य सरकार। 3,77,00,000 डोज कोविशील्ड टीका पई ऑर्डर करा जाइछि। सेही परी 10,34,000 डोज कोवैक्सीन पई मध्ये ऑर्डर दिया जाइछि। ओडिसा को टीका जोगई देबाकू दुई कंपनी सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ भारत बायोटेक को चिठी लिखिछंती स्वास्थ्य विभाग अतिरिक्त शासन सचिव। राज्यर 18 वर्षरु 44 वर्ष बयसर समस्तंकु मागणा टीका देबाकू घोषणा होईछि। आसंता मे 1 तारिखरु 18 वर्षरु अधिक बयस वर्गों को टीका दिया जिवो। नंबर 9 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन न कले दिया जीवनी टीका कहिले केंद्र सरकार। मे 1 रु सारा देश में तृतीय पर्याय टीकाकरण आरंभ होगाकू जाउछि। एही पर्याय 18 रु 44 वर्ष बयसर व्यक्ति टीका नेबे। एथिबे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आरंभ हो जाइछि। जदि एही वर्गर व्यक्ति टीका नेबे ताहेले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करिबाकू हेबो। बिना रजिस्ट्रेशन रे टीका केंद्र को आसिले टीका दिया जीवो नाही। काली केंद्र सरकार एभली गाइडलाइन जारी करी राज्य सरकार को कहिछंती। नंबर 10 श्रीमंदिर सेवायत को मिलिबो 2 लाख टंकार मौलिक बीमा। महामारी को दृष्टि रे रखी श्रीमंदिर प्रशासन सेवायत मानक स्वास्थ्य बीमा घोषणा करिसंती। प्रशासनर सूचना मुताबक श्रीमंदिर रे सेवा करुथिबो समस्त सेवायत को 2 लाख टंकार मौलिक बीमा सुविधा जोगई दिया जिवो। एने बीमा कंपनी सह आलोचना होइथिबा कहिछि श्रीमंदिर प्रशासन। अन्यपटे जो सेवायत माने गुरुतर असुस्थ हेबे सेमानक क्षेत्र रे आउ 1 लाख टंका पर्यंत अतिरिक्त सहायता जोगई दिया जिवो। नंबर 11 कंचामाल पठेबाकू राजी है अमेरिका। भारतर दाबी शुणिला अमेरिका। कोविशील्ड टीका पई आवश्यक थिबा कंचामाल पठेबा अमेरिका। कोविशील्ड उत्पादन वृद्धि पई यह भारत पई अत्यंत आवश्यकता थिला। अमेरिका रे डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट लागू होईछि। एही नीतिर अर्थ अमेरिका प्रथम। तेणु कोविड बेले अमेरिका भारत को सहयोग करि परिबो नाही बोली कहिथिला। एबे एही आदेश भारत क्षेत्र रे प्रत्याहार करिछि अमेरिका। देशर जातीय सुरक्षा परामर्शदाता अजित डोभाल अमेरिकार जातीय सुरक्षा परामर्शदाता जैके सुलिभानक सह एही प्रसंग रे आलोचना करिथिले। परे अमेरिका कंचामाल तुरंत पठेबो बोली कहिछि। नंबर 12 देशर शिल्पपति मानक अम्लजान जोगई देवको चिठी लिखिले केजरीवाल। दिल्लीर हस्पिटाल मानकरे ऑक्सीजन संकट को नहीं काली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल देशर बड़ बड़ शिल्पपति मानक चिठी लिखि जणैछंती। केजरीवाल चिठी लिखि शिल्पपति मानक अम्लजान जोगई देवको अनुरोध करिछंती। रिलायंस इंडस्ट्रीजर मुख्य मुकेश अंबानी समेत अन्य शिल्पपति मानक से चिठी लिखि कहिछंती जे जदि आपणक पाखरे ऑक्सीजन टैंकर अछि तेबे दिल्ली सरकार को सहाय्य करंतु। आपणक द्वारा जहाँ भी सहयोग होई परिबो सेही सब सहाय्य दिल्ली सरकार को जोगई दियंतु। केजरीवाल आज मुकेश अंबानी व्यतीत टाटा ग्रुपर मुख्य रतन टाटा, आदित्य बिरला, राहुल बजाज, आनंद महिंद्रा, हिंदुजा ब्रदर्स समेत अन्य चिठी लिखिछंती। दिल्ली रे ऑक्सीजन संकटर बड़ कारण हेउछि जे एठारे मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन हेउनथिबा बेले मेडिकल ऑक्सीजन कोनोसी शिल्प मध्य नाही। एमिति क्षेत्र रे केंद्र सरकार जेतिक अम्लजान जोगौछंती ताहा नियंट होई पडुछि। नंबर 13 पश्चिमबंगरू जरूरी कार्य आसुथिले संगरोध नियम लागू हेबनी। पश्चिमबंगरू अति जरूरी कार्य ओडिशा आसुथिले 14 दिनिया संगरोध नियम लागू हेब नाही। काली स्वतंत्र रिलीफ कमिशनर पक्षरु एही निर्देशनामा जारी होईछि। तेबे जरूरी काम को निर्दिष्ट भावे दुईटी भागरे सीमित रखा जाइछि। सरकारी किंबा घरोई हस्पिटाल द्वारा कोविड परिचालना संपर्कित कार्य कौनसी व्यक्ति पश्चिमबंगरू आसुथिले से संगरोध रे रहिबा आवश्यक नाही। सेहीपरि निर्वाचन कमिशन किंबा सीओ द्वारा नियोजित होई कौनसी व्यक्ति निर्वाचन कार्य ओडिशा आसुथिले से मध्य संगरोध नियमरू बाद पड़िबे। तेबे संपृक्त व्यक्ति अन्य कोविड गाइडलाइन मानिबाकू कहुଯାଇଛି। नंबर 14 जून 14 मैट्रिक परीक्षा नहीं गुजब। विद्यालय गणशिक्षा मंत्री समीरंजन दासଙ୍କ नारे फेक ट्विटर अकाउंट खोली गुजब सृष्टि करिसंती दुब्रुत। जून 14 मैट्रिक परीक्षा हेबा नै मिथ्या खबर ट्विटर रे घुरी बुलुछि। तेबे एही फेक अकाउंट तथा मिथ्या खबर उपरे विश्वास न करिबा पई निवेदन करिसंती मंत्री समीर दास। केही दुब्रुत मंत्रीଙ୍କ नाव फोटो सह सोशल मीडिया रे नकली अकाउंट खोली एबडी गुजब प्रचार करिछि। नंबर 15
राज्य में गत 24 घंटा मध्य 6116 जन कोविड संक्रमित चिन्हट 7 मृत। गत 24 घंटा मध्य राज्य में 6116 जन नूतन संक्रमित चिन्हट होती। खोर्धारू 875, सुंदरगढ़ 785, नुआपड़ू 430, अनुगुड़ 151, बालेश्वर 102, बरगढ़ 262, भद्रक 87, बलांगीर 199, बौद्धरू 32, कटक 343, देवगढ़ 39, ढेंकानाल 8, गजपति 78, गंजाम 134, जगतसिंहपुर 73, जाजपुर 324, झारसुगुड़ारू 254, कड़ाहांडी 321, कंधमाड़ू 36, केन्द्रापड़ारू 46, केन्दुझर 118, कोरापुट 71, मालकानगिरी 32, मयूरभंज 158, नवरंगपुर 318, नयगढ़ 99, पुरी 180, रायगढ़ 104, संबलपुर 280, सोनपुर 8 और स्टेट पुल 179 जन संक्रमित रही। यह 24 घंटे 7 जन आक्रांतर मृत्यु घटी। नंबर 16 आवश्यकता को पूरण करने अम्लजान उत्पादन वृद्धि कला आरएसपी। देश में कोविड रोगी बड़ विपद साजिश अम्लजान अभाव। राज्य में अम्लजान आवश्यकता को पूरण करने और अन्य राज्य को अम्लजान जोगाइवाई एवं सेल राउरकेला स्टील प्लांट तरल मेडिकल अम्लजान उत्पादन वृद्धि करिछि। बीओओ प्लांट और निजर अम्लजान प्लांट रे तरल मेडिकल अम्लजान उत्पादन करुछि आरएसपी। दुईटी प्लांट रे कर्मचारी घंटा घंटा धरी कार्य करुछंती, जहाद्वारा क्रमगत भाव में तरल मेडिकल अम्लजान उत्पादन हेबो एवं मूल्यवान जीवन बंचिबो। एप्रिल मासरे आरएसपी रु देशर विभिन्न स्थान को प्राय 1750 टन एलएमओ जोगई दिया जाइछि। नंबर 17 सबु टीका दर समान हेबा दरकार कहले घरोई हस्पिटाल संघर संपादक। टीका दर को नहीं घरोई हस्पिटाल संघर संपादक इंद्रमणि जेना प्रतिक्रिया देइछंती। से कहिछंती टीका दर अधिक रही, सबु टीका दर समान हेबा उचित। 600 टंकार कोविशील्ड टीका दर 700 किंबा 750 टंका पड़िबो। या 1200 टंका दर थिबा कोवैक्सीन टीका 1300 कि 1350 टंका पड़िबो बोली श्री जेना कहिछंती। घरोई हस्पिटाल टीका दर तुलन में सरकारी हस्पिटाल रे टीका दर कम अछि, तेणु लोक माने विडंबरे हेउ पछे सरकारी हस्पिटाल रे ही टीका नेबाकू चाहिबे बोली से कहिछंती। एपरिकी लोके बरं 6 मास अपेक्षा करी सरकारी सुविधा रे कम टंका रे टीका नेबाकू चाहिबे। अन्यपटे बीजेडी सांसद अमर पट्टनायक कहिछंती टीका दर चिंताजनक। राज्य माने वैक्सीन किनिबारे जदि एते टंका खर्च करिवे ताहेले अन्य भित्तिभूमि किबडी सजाड़िबे बोली सांसद प्रश्न करिछंती। नंबर 18 18 वर्ष रु अधिक वयस्कों मागणारे टीका दियाजिबो कहिले महाराष्ट्र सरकार। देश में महामारी विरोध में लड़ई जारी रही। लड़ई रे मुख्य अस्त्र साजिश कोविड टीका। यह टीकार दाम को नहीं देश में राजनीति चली बेले देश में सबुठारु अधिक संक्रमित राज्य महाराष्ट्र में 18 वर्ष रु अधिक वयस्कों समस्त मागणारे टीका दियाजिबो बोली महाराष्ट्र सरकार घोषणा करिसेंती। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कहिसेंती कि यह द्वारा राज्य में द्रुत गति में टीकाकरण हो पारिबो। देश में तृतीय पर्याय टीकाकरण मे 1 रु आरंभ हेबो। एही पर्याय 18 वर्ष रु अधिक वयस्क समस्त नागरिकों को टीका दियाजिबो बोली केंद्र सरकार घोषणा करिसेंती। नंबर 19 ऑक्सीमीटर व्यवहार उपरे गाइडलाइन जारी कला केंद्र। देश में महामारी बढ़ी बढ़ी चली बेले एक प्रमुख समस्या पलटि ऑक्सीजन अभाव। डाक्तर और विशेषज्ञ माने देउथबा मत अनुसार घरे रही चिकित्सित होता आक्रांत मानकर नियमित ऑक्सीजन स्तर मापिबा उचित। फल से डाक्तरखाना नेबा जरूरी कि नुहे आपण निश्चित होइजिबे। सेतिपई केंद्र सरकार एक गाइडलाइन प्रस्तुत करिसेंती, जोथिरे कि ऑक्सीजन स्तर किपरि मापिबे सूचना दिया जाइछि। ऑक्सीजन स्तर मापिबा पूर्वरु अति कम 5 मिनिट विश्राम नेबा आवश्यक। निज हाथ को हृदय उपरे रखंतु। ऑक्सीमीटर ऑन करी सेतिरे मध्यम किंबा बीसी आंगुड़ी को पुरांतु। ऑक्सीमीटर अति कम 1 मिनिट आंगुड़ी भर्ती करी रखंतु। 5 सेकेंड धरी परिवर्तन होई नथिबा सबुठारु अधिक फड़फड़ को रेकर्ड करंतु। दिन को 3 थर ऑक्सीजन स्तर रेकर्ड करंतु। या छड़ा जदि आपण असुस्थ अनुभव करूछंती तेबे 1075 नंबर को कॉल करंतु बोली गाइडलाइन रे उल्लेख कर जाइछि। नंबर 20 भारत को सहायता पाई विश्व समुदाय को निवेदन कले थनबर्ग। भारत में महामारी स्थिति अत्यंत भयंकर रूप नेबारे लागिछि। दिन को दिन स्थिति भयावह होउछि। दिल्ली समेत देशव्यापी अनेक राज्यर हस्पिटाल गुड़िकरे बेड औषध ऑक्सीजन अभाव परिलक्षित होइछि। देशर एभଳି स्थिति को नहीं चिंता प्रकट करिसेंती स्वीडेन परिवेश कर्मी ग्रेटा थनबर्ग। विश्व समुदाय भारत को सहायता करने को आगे आसिबा लागि से अनुरोध करिसेंती। थनबर्ग एक ट्वीट करी कहिसेंती भारत में जो भड़ी परिस्थिति उपजिछि ता हृदय विदारक। सारा विश्व एकजुट होई भारतर सहायता करिबा दरकार। सूचनायोग्य पूर्वरु थनबर्ग भारत में चलिथिबा कृषक आंदोलन को समर्थन करिथिले। कृषकों समर्थन रे से करिथिबा ट्वीट एवं ट्विटर रे शेयर करिथिबा टूल किट को नहीं विवाद सृष्टि होइथिला। नंबर 21 रेमडेसिविर औषध जोगाण कोटा वृद्धि कले केंद्र सरकार। देशर संक्रमण दिनक दिन वृद्धि पाउथिबारु यार चिकित्सा पई व्यवहार होउथिबा रेमडेसिविर औषध जोगाण कोटारे वृद्धि कर जाइछि। राज्य केन्द्रशासित अंचल गुड़िकरे कोविड संक्रमित रोगींक पई रेमडेसिविर औषध आवश्यकता थिबा बेले किछि दिन हेबा ता पर्याप्त भावे मिलु नथिबा अभियोग होइथिला। पूर्वरु एही असुविधार समाधान पई तथा अंत पई राज्य जोगाण को सुगम करिबा निमंते केंद्र स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय एवं फार्मास्यूटिकल विभाग मिलित भावे 19 टी राज्य और केंद्र
केन्द्रशासित अंचल पर रेमडेसिविर औषध मध्यवर्तीकालीन आवश्यकता पूरण पर आवंटन करते पुणी थे समस्त राज्य केन्द्रशासित अंचल पर यह औषध कटा वृद्धि कर केन्द्र सार और रसायन मंत्री सदानंद गौड़ा कहते। नंबर 22 भारत को सहायता और स्वास्थ्य सेवा कर्मी जोगईदेव अमेरिका। भारत में कोविड संक्रमण प्रबल होबारु जुक्तराष्ट्र अमेरिका गभीर चिंता प्रकट करिछि और भारत सरकार को तुरंत अतिरिक्त सहायता सह स्वास्थ्य सेवा कर्मी जोगई देबा पई योजना करिथिबा कथा शनिवार दिन व्हाइट हाउसर जड़े मुखपात्र कहिसंती। भारतवासी को अतिरिक्त सहायता जोगई देबा संबंध में जुक्तराष्ट्र अमेरिकार वैदेशिक सचिव आंटोनियो ब्लिंकेन मध्य ट्वीट करी जणाइछंती। से लिखिछंती भयावह कोविड-19 संक्रमण वातावरण में थिबा भारतवासी प्रति आमर समवेदना। भारत सरकार सह थिबा आमर अंशीदार मानक सह आमे निबिड़ भावे कार्य चढ़ाइछु। भारतवासी एवं भारतीय स्वास्थ्य सेवा नायक मानक आमे अविलंबे अतिरिक्त सहायता जोगई देबु। नंबर 23 देश पर उपजिपारे विद्युत संकट। महामारी परिस्थिति रे भारत पर आउ एक संकट सृष्टि होई पारे। तेबे यह होछि विद्युत क्षेत्र संकट, कारण देश को विद्युत जोगाउथिबा अनेक उत्पादन केन्द्र रे कोयला अभाव देखा देइछि। एही केन्द्र गुड़िक कोयला निर्धारित समय रे उपलब्ध होई न पारिले देशर अनेक भाग में विद्युत सरबराह ठप होई जाई पारे। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण एक तथ्यरु एभଳି आशंका उपजिछि। सूचना अनुसार देश में 46,720 मेगावाट सामूहिक क्षमता विशिष्ट 38 विद्युत उत्पादन केन्द्र निकटरे गत गुरुवार अर्थात एप्रिल 22 तारिख सुधा 7 दिन कम कोयला भंडार गच्छित रही। नंबर 24 ऑक्सीजन जोगाण पर विदेशरू आईटीसी आणिब 24 कंटेनर। भारतर कोविड लड़ई को बड़ जगैब आईटीसी। भारत में देखा संकट को दूर करने आईटीसी पड़ोशी देशरू 24 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन परिवहन कंटेनर विमान जोगे भारत को आणिब। एही कंटेनर गुड़िक द्वारा ऑक्सीजन विभिन्न हॉस्पिटल को पठाजिब। एबे कंटेनर अभाव थिबारु ठिकाना समय हॉस्पिटल गुड़िक ऑक्सीजन पहुंची पारुनथिबा अभियोग हेउछि। एहाकु दृष्टि रखी आईटीसी एपरी पदक्षेप नेइछि। नंबर 25 2020 रेजल्ट प्रकाश दिगरे रमादेवी कर्तृपक्षों पदक्षेप। महामारी पर 2020 रे राज्यर विभिन्न विश्वविद्यालय छात्र छात्री सेमिस्टर परीक्षा हो पारि नथिला। विकल्प व्यवस्था माध्यम मूल्यांकन करी छात्र छात्री रेजल्ट प्रकाश करने को उच्चशिक्षा विभाग पक्षरु समस्त विश्वविद्यालय को निर्देश दि जाइथिला। सही आधार में 2020 रे स्नातक अर्थात यूजी द्वितीय चतुर्थ सेमिस्टर और स्नातकोत्तर पीजी द्वितीय सेमिस्टर परीक्षा हो पारि नथिबारु रमादेवी महिला विश्वविद्यालय कर्तृपक्ष विकल्प पंथा आपणैछंती। विश्वविद्यालय पक्षरु जारी विज्ञप्ति अनुसार विश्वविद्यालय एवं यह अधीन 48 महाविद्यालय क्षेत्र में विकल्प व्यवस्था लागू हेबो। 2020 एप्रिल रे यूजीसी पक्षरु जारी गाइडलाइन एवं गत सेप्टेम्बर 2 रे उच्चशिक्षा विभाग विज्ञप्ति को आधार करी यूजी द्वितीय चतुर्थ एवं पीजी द्वितीय सेमिस्टर छात्र छात्री परीक्षाफल सह ग्रेड प्रदान करा जिवो। नंबर 26 बागदाद कोविड हॉस्पिटल रे निया मृत्यु संख्या 82 को वृद्धि। रविवार दिन इराकर राजधानी बागदाद रे थिबा इब्न अल खातिब हॉस्पिटल रो कोविड इंटेंसिव केयर यूनिट रे निया लागिबा घटना रे मृत्यु संख्या 82 छुईछि। 110 जन आहत होई हॉस्पिटल रे चिकित्सित होउछन्ति बोली सूत्ररु जानिबाकु मिलिछि। मेडिकल सूत्ररु प्राप्त सूचना अनुसार ऑक्सीजन सिलिंडर गच्छित रखिबारे त्रुटि जोगु विस्फोरण घटी डाक्तरखाना रे निया लागि जाइथिला। नंबर 27 महाराष्ट्र राजस्थान और मध्य प्रदेश को ऑक्सीजन नहीं जीव वायुसेना। परवर्ती पर्यायर काली भारतीय वायुसेना महाराष्ट्र राजस्थान और मध्य प्रदेश को ऑक्सीजन नहीं जीव बोली शनिवार दिन जड़े वरिष्ठ सेना कर्मचारी कहिसंती। यह पूर्व पश्चिमबंगर पानगढ़ गुजरातर जामनगर समेत देशर विभिन्न प्रांत में थिबा फिलिंग स्टेशन को भारतीय वायुसेनार परिवहन विमान बृहत्काय ऑक्सीजन कंटेनर नहीं जाइथिला। नंबर 28 चमकिले जाडेजा आरसीबीर प्रथम पराजय। चलित आईपीएल रे रविवार प्रथम पराजयर तिक्त स्वाद चाखिछि रॉयल चैलेंजर्स बांगालोर। रविवार प्रथम मैच रे रवींद्र जाडेजा ऑलराउंड सफलता बड़े चेन्नई सुपर किंग्स 69 रन रे आरसीबी को परास्त करिछि। फाफ डुप्लेसी और जाडेजा अर्धशतक बड़े प्रथमे बैटिंग करी सीएसके 4 विकेट रे 191 रन करिथिला। परे जाडेजा 3 विकेट नेबारु आरसीबी 9 विकेट रे 122 रन करि पारिथिला। चेन्नई प्रथम मैच हारिबा परे क्रमगत 4टी मैच जीति पॉइंट तालिकार शीर्ष रे पहुंची। यार ठीक विपरीत आरसीबी प्रथम 4टी जाक मैच जीतिबा परे प्रथम पराजय भोगी। नंबर 29 कोहली बड़ रेकर्ड भांगिले पाकिस्तान कैप्टेन। पाकिस्तान कैप्टेन बाबर आजम अंतर्जातीय टी20 क्रिकेट रे आउ एक नुआ कीर्तिमान निज नारे करिसंती। बाबर टी20 रे सबुठारु द्रुत 2000 रन संग्रहकारी बैट्समैन होइछंती। बाबर रविवार जिम्बाब्वे विपक्ष तृतीय टी20 मैच रे ई उपलब्धि अर्जन करिसंती। बाबर मात्र 52 इनिंग्स रे कारनामा करिसंती। एथिसह बाबर टीम इंडिया कैप्टेन विराट कोहली पछरे पकई देइछंती। कोहली 56 इनिंग्स रे 2000 रन पूरण करिथिले। नंबर 30 2022 विश्वकप मोर शेष टूर्नामेंट कहिले मिताली। भारतीय महिला क्रिकेट दलर दिनिकिया
ଅଧିନାୟକ ମିତାଲି ରାଜ 2022 ଦିନିକିଆ ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ପରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେବା ନେଇ ସଂକେତ ଦେଇଛନ୍ତି। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡରେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ବିଶ୍ୱକପ୍ ପରେ 23 ବର୍ଷର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପକାଇବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମିତାଲି। 1982 ଡିସେମ୍ବର 3ରେ ରାଜସ୍ଥାନର ଯୋଧପୁରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ମିତାଲି 1999 ଜୁନ 26ରେ ଆୟାରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟରୁ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଟି20 ଓ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେଇସାରିଥିବା ମିତାଲି ଦିନିକିଆ ଖେଳିବା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଭିଡିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।